Hello students, let's start the chapter 3 of unit 1. So the name of the chapter is 3 days to see. सिर्फ 3 दिन है देखने के लिए. So before going ahead with the explanation of this chapter, let's discuss few questions. Let us do these activities before we read. Work in pairs and recall a visit to a place that you liked. Now, students, you must have gone on vacation, some outing, and you must have liked the place very much, and you must have created a lot of memories. So, the question is about that only. So, the answer will vary from person to person. Okay, so name the place, right? So it can be anything, it can be mountains, beaches. Suppose the name of the place is Goa. Okay, now the person you went with, I went with my family. The things that you could see. Now, when you have gone to Goa, what you will see? I saw beaches and sand all around. Listen, what you will listen when you will go to a place like Goa? I listened to the waves of water, crowd. Okay. The next is a smell. What did you smell there? Do you have any smell which you can relate to that place? So again, answer can vary, like maybe स्मेल ऑफ द सैंड, यू नो, जैसे गीली मिट्टी, बारिश की मिट्टी की एक स्मेल होती है. सो सिमिलरली द स्मेल ऑफ sand, or you can say maybe you have gone to the area where there are a lot of fishes. Okay, because seafood is very common at such place. So the smell of crabs, fish, then the taste. So which taste will you associate with the place, with that particular space? Maybe the taste of the taste of the chai, the taste of the Maggie, or the taste of the fish. Okay, now touch and feel. So you whenever you will touch any sand, so what you will get, very grainy texture. Okay, so or when you will touch water, you will feel very cool and enjoy the feeling of in water. So that is now that is how you are going to answer these kind of questions. Now, how does this memory make you feel? It makes you feel very happy, right? जो ऐसी memory है when you are going on a vacation, most of the time, and we should also wish that all these vacations should bring us happy memories and not sad ones. Okay, so such questions are always for discussions, and you should always discuss these with your friend and family so that you can talk more. Okay, now when we are starting the chapter, now in this scene you can see that some of the there are it is a scene of few students. Now they 5 students are there, they all are showing different senses. We all have 5 senses, right? The girl is smelling the flower, the girl is tasting the fruit, boy is touching, one boy is hearing. Okay, so all these things are related to our senses. Okay, so let's start the reading. I, who cannot see, find hundreds of things to entrust me through mere touch. I, now who is I in this uh, story? I is the author. She is Helen. Okay, and she is blind. She cannot see. She's saying कि मैं जो नहीं देख सकती, ऐसी आई कैन थिंक ऑफ, और ऐसी मैं इतनी 500 चीज़ें सोच सकती हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्ट मेरे में जगाती हैं. बाय जस्ट टचिंग, मेयरिंग मतलब बाय जस्ट, बाय मेयर टचिंग. ओके,
मेयर मीन्स बस इतना सा मैं उसे टच ही करूँगी और मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, मे बी व्हेन आई एम टचिंग अ फ्लावर, मे बी समथिंग हार्ड, मे बी समथिंग सॉफ्ट, बिकॉज आई कैन नॉट सी। तो मुझे और क्यूरियोसिटी होती है मन में कि ये क्या है जो ऐसा फील हो रहा है, व्हाट इट वुड बी। I feel the delicate memory of a leaf, sorry, not memory, symmetry. You must have seen many leaves जिसमें they are symmetrical कि दोनों अगर आप fold कर दोगे, so that would be almost of the same size. So she can feel it. She cannot see the symmetry, but she can feel it. I pass my hands loving about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. अब यहाँ पे तो अलग अलग सेंस ऑफ टच की बात हो रही है, ओके। एक बात हो रही है बर्च। बर्च इज लाइक अ ट्री, वेरी टॉल ट्री, जिसकी जो बाक होती है, जो उसकी जो आउटर स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, ओके। बट जो एक बाक ऑफ अ पाइन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, हेयरी होता है। सो हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट touches, okay, one is the smooth and other is very harsh, okay. In spring I touch the branches of tree hopefully in a search of bud. अब ये द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। अब क्या होता है, जनरली विंटर्स में इतना प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो विंटर्स के बाद जब स्प्रिंग आता है तो वो पेड़ पौधों को ऐसे हाथ लगा के देखती है। किसके लिए देखती है? इन सर्च ऑफ अ बर्ड। बड मीन्स जो एक छोटी सी कली होती है जहाँ जिससे हमारी फर्दर सैपलिंग और फिर प्लांट बनता है। तो वो स्प्रिंग में ही आते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कह रही है? अवेकन कौन कौन हो रहा है? अवेकनिंग कौन? अवेकन मतलब जागना। कौन जाग रहा है नींद से? नेचर जाग रही है, बिकॉज विंटर में तो कोई प्लांटेशन नहीं हो रहा, नो बड इज कमिंग। तो हमारी जो नेचर है वो जाग रही है और बड्स बन रहे हैं, ठीक है। नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. Occasionally मतलब कभी कभी, ओके okay, मतलब किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, नॉट एवरी टाइम। सो शी इज सेइंग कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट होना मतलब आई एम लकी। मैं लकी होती हूँ उस वक्त कि मेरा कभी कभी हाथ किस पे आ जाता है, एक छोटे से पेड़ पर आ जाता है जहाँ पर वो फील कर सकती है कि एक बर्ड गा रहा है। और यहाँ पे हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। जो बर्ड जब गाता है तो उसकी थोड़ी सी शिवरिंग शिवरिंग सी आवाज़ होती है, तो उसको वो फील कर सकती है। At times, my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. At times, वो हार्ट क्राइज आउट मतलब उसका दिल रोता है। लॉन्गिंग टू सी ऑल थिंग, लॉन्गिंग मतलब कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, उसका उसको देखने के लिए, उसको होने के लिए। तो वो ये जो अभी उसने लास्ट पैराग्राफ में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी, लाइक बट को देखना, सरफेस को देखना किसी प्लांट के, वो सब वो फील कर रही है, देख नहीं रही है। तो इन सब के बारे में कह रही है कि मैं इतना मन करता है, मेरा हार्ट रोता है कि मैं इन सब को देख पाऊँ। और वो ये सोचते हैं कि इनको करने मात्र से, इनको सिर्फ छूने मात्र से, मियर मतलब सिर्फ, सिर्फ छूने मात्र से मुझे इतना मज़ा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है। तो जब कितना सुंदर लगेगा जब मैं इन सबको देखूंगी, ओके। रिवील्ड, इनकी ब्यूटी रिवील होगी मतलब खुलेगी, दिखेगी। एंड आई हैव इमेजिन्ड दैट आई शुड most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. तो वो इमेजिन करती है कि मैं क्या करूँगी अगर मैं अपनी आंखें यूज़ कर पाऊँ सिर्फ 3 दिन के लिए। Here comes the name of our chapter. Now,
अगर उसे ऐसे 3 दिन मिल गए तो उसने प्लानिंग भी करी है, ठीक है। उसने क्या करा कि चलो अब मैं प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. Now, see how good she is as a person. Uh, she cannot see, but there are many people in her life who has helped her, who has made her life worth living. Worth living का मतलब जीने के लायक, किसी चीज़ के लायक आप होते हो तो उसको वर्थ कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि मैं लोगों की काइंडनेस, अच्छाई और कंपेनियनशिप मतलब दोस्ती, ऐसे लोगों को मैं देखना चाहूँगी जो उसके लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, जिससे वो आगे बढ़ सकी. आई डू नॉट नो वॉट इज़ इट टू सी इन टू हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई. आँख को वो कंपेयर कर रही है आपकी आत्मा का, आत्मा की खिड़की, ठीक है। कि वो कह रही है कि आंखों से मैं उनकी आत्मा को पढ़ लूँगी, देख लूँगी. और वो कह रही है मुझे नहीं पता, आज तक तो मैंने उनको ऐसे आंखों से नहीं देखा है, तो तब उनको मैं कैसे देखूँगी आंखों से, आई डोंट नो. I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. अभी वो डे 1 पे ही है और वो कह रही है कि अभी तक तो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को उनके फेसेस का जो आउटलाइन होता है उनको छू के पता कर सकती थी, डिटेक्ट कर सकती थी कि वो खुश है, उदास हैं या और भी दूसरे इमोशंस. बट मतलब मैं उनको फील करके, उनके फेस को टच करके, फील करके ही कर सकती हूँ ये सब चीज़ें अपनी आंखों के बिना, ठीक है. सो द नेक्स्ट डे, अभी एक दिन तो वो अपनी कंपेनियनशिप और काइंडनेस, सी उसके पास 3 ही दिन है, उसमें से भी फर्स्ट डे उसने अपने लोगों के लिए पहले रखा, नॉट फॉर हर सेल्फ बट टू see the people who has helped her. Now she has come to the next day. The next day, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into the day. नेक्स्ट डे वो कह रही है मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, अराइज विद द डॉन, ठीक है, जैसे सनराइज होगा तभी मैं भी उठ जाऊंगी. और थ्रिलिंग मिरेकल, मिरेकल क्या होता है, कोई भी एकदम अजूबा हो जाना, वो उसके लिए अजूबे जैसा ही है कि सुबह होना इज लाइक अ मेरेकल फॉर हर, कि नाइट दिन में बदल जाती है, राइट, क्योंकि उसके लिए तो पूरी जिंदगी रात ही है. I should behold with awe the magnificent panorama of light which the sun awakens the sleeping earth. Behold करना मतलब देखना, तो वो मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही समथिंग जो बहुत बड़ा है. अब पनोरमा मीन्स, पनोरमा ऑफ लाइट होता है बेसिकली, आपने ये मोबाइल ऐप्स में भी एक फीचर होता है पनोरमा, जिसमें आपको एक बहुत ही एनलार्ज पिक्चर दिखती है ना. तो वो एकदम ऑ में होगी वो सब देख के कि कैसे सन सोई हुई धरती को उठाता है और कैसे वो लाइट फैल जाएगी और वो सीन इतना बड़ा होगा उसके लिए वो सब कुछ होगा. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageants of man's progress, and so I should go to the museums. तो पहले दिन तो उसने अपने कंपेनियंस को देखा. दूसरे दिन वो क्या कह रही है, दैट मैं सुबह देखूंगी, ठीक है, कैसे सुबह होती है, रात कैसे सुबह में बदलती है, मैं वो देखूंगी. मैं दुनिया को देखूंगी, पास्ट एंड प्रेजेंट को देखूंगी. और पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, पेजेंट कोई भी मतलब आप कोई चीज़ डिस्प्ले कर रहे हो कि मैन कैसे तरक्की कर रहा है, ओके, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, और मैं म्यूज़ियम जाके ये सब देखूंगी. There my eyes would see the condensed history of earth, animal and races of men, pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and
mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. अब इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली वो सिर्फ अभी के बारे में नहीं देख रही है, वो ये देख रही है कि मैन पहले कैसा था, पास्ट में कैसा था और अब कैसा है। तो इसके लिए उसे म्यूजियम जाना पड़ेगा, मैन की प्रोग्रेस देखना चाहती है। वो देखेगी कि कैसे एनिमल्स और एनिमल्स पहले के नेटिव एनवायरनमेंट, नेटिव होता है जो आपका अपना पुराना माहौल है, पहले कैसे एनिमल्स रहते थे। ठीक है, गाइगेंटिक समथिंग मतलब बहुत बड़ा, गाइगेंटिक कारकैसेस, कारकैसेस क्या होता है, जो बच गया है, रिमेन्स, किसके रिमेन्स, डायनासोर्स के रिमेन्स। अब डायनासोर्स तो अब एक्सटेंट हो गए हैं, तो वो कह रही है कि जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे, अब वो सब उनके जो रिमेन्स हैं वो म्यूजियम्स में है। मेस्टोडॉन्स इज अगेन अ वेरी लार्ज एनिमल, एलिफेंट जैसा दिखता है और पर उसके उस पे बहुत फर होता है। ठीक है, तो अब मेस्टोडॉन्स और डायनासोर्स नहीं हैं, सो उनकी जो रिमेन्स हैं वो म्यूजियम में देखना चाहती है। पर साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहती है कि कैसे ये जो टाइनी सा, ये जो इंसान, जो सी ये जो डायनासोर्स और मेस्टोडॉन्स हैं, ये कितने गाइगेंटिक क्रिएचर्स हैं, इंसान उनके सामने बहुत छोटा है। कैसे इस छोटे से इंसान ने अपने एक पावरफुल ब्रेन के साथ किसको जीत लिया, एनिमल किंगडम को जीत लिया। कॉन्कर करना मतलब जीत लेना। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस उसके माइंड में है। सो ये सब क्वेश्चंस उसके कहाँ पे सॉल्व होंगे, when she will go to the museum. The following morning, now second day has passed, it has come to the third part of the story. I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो सुबह सुबह उठ जाएगी, शी विल नॉट वेस्ट द टाइम, शी हैज़ ओनली 3 days टू सी द वर्ल्ड अराउंड। एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, एंशियस मतलब आप बहुत आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कुछ नया अच्छा डिस्कवर करना। न्यू डिलाइट मतलब नई खुशियाँ, डिलाइट मतलब यू आर वेरी हैप्पी, कुछ नई खुशियाँ। रेवलेशंस मतलब कुछ नया ढूंढने के लिए, ऑफ ब्यूटी, उसके लिए ये सब ब्यूटी है। तो थर्ड डे वो नई चीज़ें ढूंढेगी। अभी वो पास्ट में थी कि कैसे पास्ट से प्रेजेंट इंसान चेंज हुआ। थर्ड डे वो क्या करेगी, प्रेजेंट में रहेगी, नई ऑब्जर्वेशंस करेगी, नई खुशियाँ ढूंढेगी। टुडे इज़ द थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन अ वर्क अ डे वर्ल्ड and the haunts of man going about the business of life. This city becomes my destination. The third day she will be present, कहाँ पे, काम काजी दुनिया में, जहाँ पर मैन क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं। ओके, मीटिंग्स हो रही हैं, वर्क स्टेशंस हैं। तो ये सब वो कहाँ पे दिखेगा, गांव में नहीं दिखेगा, सिटी। तो सिटी उसकी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। First, I stand at a busy corner, merely looking at a people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. तो पहले वो कह रही है कि मैं एक बिजी कॉर्नर में चुपचाप खड़ी रहूंगी, मियरली, मियरली मतलब बस देखूंगी, जस्ट, मेयरली मतलब जस्ट, कुछ और नहीं करूँगी, जस्ट देखूंगी लोगों को और उनकी डेली लाइफ देख के समझूंगी, बात नहीं करूँगी उनसे। आई विल जस्ट ऑब्जर्व देम। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। वो कह रही है कि जब मैं स्माइल्स देखूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, जब मैं लोगों को सीरियसली अपने काम के प्रति डिटर्मिन्ड देखूंगी, मेहनत करते हुए देखूंगी तो मुझे प्राउड फील होगा, और जब मैं किसी को दुख देखूंगी, परेशान देखूंगी तो मैं कंपैशनेट भी होंगी। कंपैशनेट मतलब आप उनके साथ उनके दुख में उनको समझ रहे हो। सी, आप उनको हेल्प नहीं कर सकते बट यू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, सो ये सब वो थर्ड डे करेगी। सी, सिटी का सीन दिखाया हुआ है, वेयर शी इज looking everyone with the, just merely looking at them. Now at night, permanent night would close in on me again.
3 दिन पास हो गए हैं एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे, उसके लिए वो रात सिर्फ रात नहीं है, इट इज़ परमानेंट नाइट फॉर हिम। तो वो कह रही है वो फिर जो परमानेंट नाइट है मेरे पे, फिर वो आ जाएगी। Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. वो कह रही है कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैं 3 दिनों में, इतने 3 छोटे दिनों में जो सब मैं देखना चाहती थी वो मैं नहीं देख पाई हूँ। और ये मुझे कब रियलाइज़ हो रहा है कि जब डार्कनेस उसके ऊपर दोबारा छा गई तो उसने रियलाइज़ करा कि मैंने क्या कुछ नहीं देखा। आई हैड लेफ्ट अनसी। I, who am blind, can give one hint to those who can see. अब वो आपको बता रही है, सलाह दे रही है, use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. And the same method can be applied to your other senses. वो कह रहे कि आज अपनी आंखों को यूज करो कि कल कहीं तुम यू वुड बी एकदम ब्लाइंड हो जाओ। तो ऐसी ही आप सोचो अपनी दूसरी सेंसेस के बारे में। अच्छा म्यूजिक सुनो, सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. वो कह रही है कि सपोज आपके आप कल सुन नहीं पाओगे तो इसलिए आज अच्छा म्यूजिक सुनो, वो चिड़िया की चहचहाहट सुनो, ऑर्केस्ट्रा के ट्यून्स सुनो। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप एकदम एकदम डेफ हो जाओ। ओके, टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। टेक्टाइल सेंस मीन्स सेंस ऑफ टच। स्मेल the perfume of flowers, taste with relish each morsel, as if tomorrow you could never smell and taste again. तो आज वो कह रही है कि सब चीज़ों को टेस्ट करो, परफ्यूम्स ऑफ फ्लावर, खाने को एक्सपेरिमेंट करो, खाने को स्मेल करो, उसे रेलिश करो, मतलब इंजॉय करो। रेलिश करना मतलब इंजॉय करना। मॉर्सल मतलब खाना, खाने का कोई भी पीस ऑफ फूड। लाइक हर एक खाने का एक अलग अरोमा होता है, खुशबू होती है ना, स्मेल होती है। तो आप अगर आप बस आप सोचो कि नहीं यार मुझे तो यही खाना है, तो और सोचो कि कल आपके पास वो सेंस ही नहीं है वो स्मेल करने की, खाने की, सो यू हैव लॉस्ट दैट चांस। ओके, make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. शी इज सेइंग, इन सब सेंसेस के बारे में एग्जाम्पल दे के वो कह रही है कि मेक मोस्ट ऑफ एवरी सेंस। मोस्ट ऑफ एवरी सेंस मतलब जो जो सेंसेस आपके पास हैं उसका भली भांति अच्छे से यूज करो। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट ऑफ प्लेजर जिसमें मज़ा आता है, जो नेचर से कनेक्टेड है, छूने में, सुनने में, सूंघने में, टच करने में, उन सबको आप उसको यूज़ करो क्योंकि आपको वो नेचर ने बख्शी है, नेचर ने आपको दी है। बट उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में वो अपनी अपने अकॉर्डिंगली कह रही है कि जितनी भी सेंसेस हैं, आई एम श्योर कि सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली है। डिलाइटफुल का मतलब जो आपको खुशी दे, वो कौन सी है? साइट। Okay, that is the sight. Sight must be the most delightful. So, uh, author is Helen Keller. Now, see, students, when you are reading this, uh, take it in the very positive way कि आप अगर कोई चीज़ देख रहे हो तो अच्छी चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करो। इट इज़ शी इज़ नॉट सजेस्टिंग यू दैट यू स्पेंड योर टाइम ऑन वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स एंड स्पॉइल योर सेंसेस। ओके, प्रोडक्ट ऐसी जगह आप अपनी सेंसेस को यूज करो विच आर प्रोडक्टिव, विच गिव्स यू मेमोरीज टू लास्ट। ओके, सो आई होप you have understood the essence of the story and how precious our eyes and our all senses are. So respect them,
Do not overuse them, do not abuse them. Just take care of them and use them appropriately. I hope you have understood, and thank you.